दिन आया। So if you take the whole cycle of events, तो फिर अगर आप पूरे घटनाक्रम की चक्री को देखें, which is the Palm Sunday, जो कि पाम संडे अर्थात खजूर का इतवार का दिन है, Good Friday, और फिर गुड फ्राइडे का दिन है, Easter, और फिर ईस्टर का दिन है, and then the rapture, और फिर स्वर्ग पे उठाया जाना रैप्चर है। I mean that one, मेरा मतलब है उस वाले से, and then the day of Pentecost, और फिर आगे पेंतिकुस्त का दिन। all took place within 2 to 3 months. ये सब कुछ 2 से 3 महीने में घट गया। So we have to find out when was that. तो हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि ये सब कब हुआ। So now I'm reading from the 6th seal, तो अब मैं छठी मोहर से पढ़ रहा हूँ, and Brother Branham says, referring to Matthew 24, और भाई ब्रैनम कहते हैं मत्ती 24 की ओर संकेत देते हुए, he said these 3 verses, he read Matthew 24, 1 to 3. उन्होंने मत्ती 24 को पढ़ा 1 से 3। I'm not reading it with you now, मैं उसको आपके साथ नहीं पढ़ूंगा, so you can check it back at home. तो आप इसको घर में वापस बाहर देख सकते हैं पीछे। But you find, he said, पर आप पाते हैं उन्होंने कहा these 3 verses ये 3 आयतें took place on Tuesday afternoon. ये घटी मंगलवार दोपहर में, And he gives that date also, और वो उसकी तारीख भी देते हैं, April the 4th, 4 अप्रैल AD 30. 30 AD। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? The first 2 verses took place on afternoon of 4th April AD 30. पहली 2 आयतें जो हैं घटी दोपहर में अप्रैल 4 30 AD की, And the 3rd verse took place on Tuesday evening. और जो तीसरी आयत है वो मंगलवार शाम को घटी। So he gives you the exact time. तो वो आपको ठीक समय बता रहे हैं। So you understand तो आप समझेंगे that the year in which our Lord Jesus died was not actually 33. कि जो साल जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह मरे वो 33 नहीं था, which is called by ushers as 33, जो कि अशर के द्वारा 33 कहा गया है, but actually it was AD 30. पर वास्तविकता में ये 30 AD था। That's right. ये बात ठीक है। And now, और अब can you bring the church ages here, brother? क्या आप चर्चेज यहाँ ला सकते हैं भाई? And I like to show you something here. और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कुछ। When you see the Gentile church ages, जब आप अन्य जाति कलीसिया कालों को देखते हैं, we begin with Ephesus, हम शुरू करते हैं अफसुस से, which began in AD 53. जो कि AD 53 में शुरू होता है। So we can say the dealing, I would say it like this, the church ages began in AD 53. तो मैं ये कहूंगा कि कलीसिया काल 53 AD में शुरू हुए, And if you see the Bible carefully, और अगर आप बाइबल को ध्यानपूर्वक देखें, I'm going to write something here. मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा। From AD 30 30 AD से till AD 53, AD 53 तक we have 23 years. हमारे पास 23 साल हैं। And what was happening during these 23 years is very interesting. और क्या कुछ इन खास 23 सालों में गुजर रहा था, घट रहा था, वो बहुत ही दिलचस्प है। As I said to you, जैसा मैंने आपसे कहा, April 4 4 अप्रैल was Tuesday, मंगलवार था, Wednesday, Thursday, Friday, 5, 6, 7th April तो फिर 7 अप्रैल was the day of Good Friday. वो दिन था गुड फ्राइडे का, That was April the 7th, AD 30. वो 7 अप्रैल 30 AD था। Then 9th April, फिर 9 अप्रैल which was a Sunday, जो कि एक संडे का दिन था, was the Easter. ये ईस्टर था। Is that right? क्या ये बात ठीक है? And I'm not calculating dates now, अब मैं कोई तारीखें कैलकुलेट नहीं कर रहा, but then 40 days later, पर ठीक 40 दिन बाद, which would be somewhere in May, जो कि कहीं ना कहीं मई में आएगा, was the day of rapture. ये रैप्चर का दिन था। Somewhere around, I would say April 9, 30 days, May 9, May 19th, May 17th. Could that could be the time. हो सकता है मई 19, मई 17 इसी के आसपास का समय हो रहा होगा। That was the time when the rapture took place and Jesus Christ went with the Old Testament saints up. ये वो समय था जब रैप्चर हुआ और यीशु मसीह पुराने नियम के संतों के साथ स्वर्ग पे चले गए। Now see, the beauty of this message is it shines a light on one main part and the Holy Spirit takes it and shows you the rest. अब खूबसूरती है मैन इस संदेश की ये है कि वो रोशनी को चमकाता है एक मुख्य हिस्से पर
और अब ये पवित्र आत्मा का काम होता है जो कि आपको बाकी के अन्य हिस्सों में लेके जाए। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So around May 19th, the Old Testament saints and Jesus Christ were raptured. तो लगभग मई 19 के आसपास यीशु मसीह और पुराने नियम के संतों का रैप्चर हुआ। Somebody might be hearing for the first time and say, hey brother, you're telling the dates? I mean the dates when the rapture took place 2000 years back? Yes, I can, because I have a definite date for one event and from there I can go further. तो अगर कोई यहाँ पर बैठा हो और पहली बार सुन रहा हो कि अरे भाई आप रैप्चर की घटना की तारीख बता रहे हैं जो कि 2000 साल पहले घटी थी, तो मैं कहूंगा हाँ ये बात सही है, क्योंकि मेरे पास एक अधिकृत बात है जो कि संदेश में पाई जाती है कि एक तारीख मिली है और उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तारीख रही होगी। That's right. ये बात ठीक है। So it was around May the 19th. तो ये लगभग मई 19 के आसपास की है। And how appropriate if you see the days of Noah also. और कितना ये सटीक है अगर आप नूह के दिनों को भी देखें। That 17th May the rains began. वो 17 मई जो है उसी दिन बारिशें शुरू हुई And the ark started getting lifted up. और जो कश्ती है फिर जमीन की सतह से ऊपर उठने लगी। Is that right? क्या ये बात ठीक है? Amen. आमीन। And it was May the 17th that this cloud was published in the Life magazine. और ये 17 मई ही था, वो तारीख थी जब ये बादल जो है छापा गया लाइफ मैगजीन में। Is that right? क्या ये बात ठीक है? When the first phase of the rapture began, जब पहला चरण रैप्चर का शुरू हुआ, which is the shout, जो कि ललकार है, which started when the seals were opened, जो कि शुरू हुई जब मोहरें खोली गईं, when a mighty angel came down. जब एक बलि स्वर्गदूत नीचे उतर के आया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So all that happened there is happening again. तो जो कुछ वहां हुआ ये फिर से घट रहा है। And we are already in the phases of the rapture. और हम पहले से अब रैप्चर के चरणों में घुस चुके हैं। Amen. आमीन। I thank God that the old idea, the denominational idea of the rapture has been broken by this message. आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि जो पुराना संस्थागत गिरजों की विचारधारा थी रैप्चर को लेके, वो इस संदेश के द्वारा तोड़ डाली गई है। And you know the old idea was Jesus is in the air with his, nail scarred hands standing like this. And once somebody is coming out of a bus, somebody is coming out of a car, and somebody is coming from the road, somebody coming from the house, everybody flying up. और आप जानते हैं पुराना संस्थागत गिरजे का जो विचार था वो यही था रैप्चर को लेके कि यीशु मसीह अपने खुले छिदे हाथ को खोल के खड़े हुए हैं और एक शख्स है जो कि बस में से उड़ रहा है, एक शख्स है कोई घर से उड़ रहा है, एक शख्स है कोई रोड पे चलते चलते उड़ रहा है और सब इकट्ठा होके यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। I even heard one denominational preacher saying, मैंने यहाँ तक कि एक संस्थागत गिरजे के प्रचारक को ये कहते भी सुना, आपको मालूम, on the day of rapture there would be many accidents. रैप्चर के दिन बहुतेरी दुर्घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट होंगे। You know why? हाँ, तुम जानते हो क्यों? Many drivers would be raptured. बहुतेरे ड्राइवरों का रैप्चर हो जाएगा। You see, आप देखेंगे, so the way they present it, आप देखेंगे जिस तरीके से वो इस बात को प्रस्तुत करते हैं, it looks that everybody in the world will know that the rapture has taken place today. मानो कि हर एक शख्स दुनिया में ये जान पाएगा कि रैप्चर आज घट गया है। Whereas it is not like that. जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। It's like a thief. ये तो एक चोर की मानंद है। Amen. It's a sudden secret catching away of the bride. ये एक अचानक गुप्त उठाया जाना है दुल्हन का। Nobody in the world will know it. कोई भी शख्स दुनिया में इसको नहीं जानेगा। When this bride will be called home. जब ये दुल्हन घर वापस बुला ली जाएगी। Amen. Somewhere between 6 and 9, as the prophet said some morning. कहीं ना कहीं 6 से 9 के बीच में, जैसा हमारे नबी ने कहा किसी सुबह। You might be brushing your teeth. हो सकता है आप अपने दांत को साफ कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो। But the next instant you are in your glorified body. और अगले ही क्षण आप अपनी महिमायुक्त देह में हो। Hallelujah. Amen. And you could be anywhere. और हो सकता है आप कहीं भी हो। And you just disappear. और आप ठीक गायब हो जाएंगे। In another dimension. एक दूसरे अयाम में। A parallel dimension which is right here. एक ऐसा समानांतर अयाम जो ठीक यहीं पर है। And so we are so interested in knowing about that. और इसलिए हम इतना दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं उसके बारे में जानने के लिए। Now people call that rapture. अब लोग तो उसे रैप्चर कहते हैं। No. नहीं।
But when this prophet came, पर जब ये नबी आए, he explained what the rapture is. उन्होंने समझाया कि ये रैप्चर क्या है। The Lord himself shall descend प्रभु स्वयं आप ही स्वर्ग से उतरेगा, with a shout, एक ललकार के साथ, with the voice of archangel, प्रधान दूत के शब्द के साथ, and the trump of God. और खुदा की तुरी के साथ। Is that right? क्या ये बात ठीक है? Then Brother Branham said, तब भाई ब्रह्म ने कहा, what is the shout? ये ललकार क्या है? A messenger getting the people ready. एक संदेशवाहक जो लोगों को तैयारी देता है। The gathering of the living bride. जीवती दुल्हन का इकट्ठा किया जाना। And Brother Branham said, अब भाई ब्रह्म ने कहा, that message came when the seals were opened. आमेन, वो संदेश तब आया जब मोहरें खोल दी गईं। Is that right? क्या ये बात ठीक है? And so now that year, and then it was published, that cloud was published in a Life magazine. तो आप देखेंगे उस साल में, वो उस तारीख में वो क्लाउड जो है, बादल जो है, पब्लिश किया गया लाइफ मैगजीन में। And that was a May 17th issue. और वो मई 17 का संस्करण था, Same as it was in the days of Noah. जैसा कि ठीक नूह के दिनों में हुआ था। And when you see the days of Christ, और जब आप मसीह के दिनों को देखते हैं, when Christ went up with the Old Testament saints, जब मसीह पुराने नियम के संतों के साथ ऊपर गए, that was around that time. ये ठीक उसी समय के आसपास था। May the 19th, approximately around that time. मई 19 लगभग उसी के आसपास। And then 10 days later, और फिर 10 दिन उपरांत, so that would be around May the 29th, तो हो सकता है ये मई 29 हो, or June 1st, or something like that. या जून 1 या कोई आसपास ही। When the day of Pentecost came. आमेन, जब पेंतिकुस्त का दिन आया। Now, that is something very important. अब ये कुछ ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। Since we are in the teaching of this book of Galatians, क्योंकि हम इस गलतियों की पुस्तक के अध्ययन में हैं, शिक्षा वाले स्तर में हैं, so I think you will understand these things. तो मैं सोचता हूं आप इन चीजों को समझेंगे। And we are going to go to the scriptures to see some things. और हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे कुछ खास चीजों को देखने के लिए भी, Because there are some intriguing things which needs to be taught. क्योंकि ये कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनके ऊपर विचार करना अनिवार्य है, जो अपने में बड़ी रहस्यमय हैं। So you find तो आप पाते हैं May 29 of June 1 to 3, that was the season in the first Exodus when God came down by fire on Mount Sinai. तो आप पाएंगे मई 29 या जून 1 से 3 तक ये वो समय था पहली निर्गमन के जमाने में, जब खुदावंद एक आग के रूप में सीने पर्वत पर उतरे And gave them the law. और उन्हें पुस्तक दी। And that is व्यवस्था दी। why और इसलिए the day of Pentecost amongst the Jews was also celebrated as a commemoration of the giving of the law. और इसीलिए यहूदियों में पेंतिकुस्त का दिन इस बात के लिए भी मनाया जाता था, एक स्मृति के रूप में उस व्यवस्था के आने के दिन की, Where the fire of God came down on the mountain. जब खुदा की आग उस पहाड़ के ऊपर उतरी। Now see how God works with his time. अब आप देखिए खुदावन अपने समय के अनुसार कैसे काम करते हैं। On that very same day, ठीक उसी दिन where the old Jewish custom was sitting on the ground floor of the temple commemorating the coming of the law 2000 years back, जब जो पुराना यहूदी रीति रिवाज था उस ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के उन बातों की स्मृति में मना रहा था, उस पुस्तक की, उस व्यवस्था की जो कि 2000 साल पहले आई थी, उसी समय when it came on a mountain, जब वो एक पहाड़ पे आई, on the top floor, उस टॉप फ्लोर में there was some 120, कुछ 120 थे, and now और अब that same fire वही आग which came on Mount Sinai जो कि सीने पर्वत पे आई, descended in the upper room, हालेलुया, उपरोठी कोठरी में उतर के आ गई, and when it came down, और जब वो नीचे उतरी, it came down with the life of that book. वो नीचे उतरी उस पुस्तक के जीवन के साथ।